Okay, welcome back to the another video. I hope you people have understood कि what is optometry और optometry में enroll करने के लिए और future में एक आई एक्सपर्ट बनने के लिए क्या 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 करना चाहिए, कैसे एक्सेप्ट MBBS तुम ऑप्टोमेट्री चूज़ कर सकते हो और उसका 5 साल का करिकुलम होता है, ठीक है। और आप अगर वेस्ट बंगाल से हो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एनी आउटसाइड state and that is from India itself, we can enroll that under a MACOUT, which is a state government university in West Bengal. Okay, that Maulana Abul Kalam Azad University and Technology. Okay, so today we'll talk about, see, I'll take some classes from core subject like clinical refraction. Okay, if you know, you know. So if you are from optometry department and if you are from the MACOUT student itself, so it will be helpful for you. So you can subscribe to my channel for the upcoming videos, and if you have any query regarding any subject or any doubts regarding optometry itself and the career build up, you can ask in the comment, so I'll try to answer the questions. Acha. So I'll take your classes like what are the classes that I take. I will take for this semester because you people have exam, right? So first I take, which is a clinical refraction, okay, and second I take मैं दूसरा जो क्लास लेता हूँ वो है ऑप्थेल्मिक डिस्पेंसिंग. So this is from these are the subject that is from the 4th semester, and for 6th semester I take orthoptics, and also I can teach you people the contact lens also, like I'll try to, and one by one we'll clear out one doubt. Okay, so today we'll talk about a new topic, which is importance of history taking in optometry. Okay, so today we'll clear out this question. Okay, optometry or in any medical field or any paramedical field you have or you are right now. So what you need to do, or what we do, or what we suggest, is the first initial breakthrough is a history taking. A proper, a clean history taking will give you the idea to diagnose or what to examine, or that will give you the hint to do the proper management. Okay, that will help you. So this is history taking for any medical history in any medical profession. Now we are coming to the optometry. So in optometry we have a certain stage of taking history. So that first stage we start with what we start with the demographic data. Okay, as a personal and demographic data. Okay, now the personal and demographic details. Okay, so अच्छा, तुम लोग इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लेना अगर तुम वीडियो अभी देख रहे हो. सो यू कैन राइट डाउन. ओके, और कुछ भी मिस आउट हो रहा है मुझसे या तुमसे कुछ डाउट है तो मुझे इसी टाइम मुझे कमेंट कर देना. तो फिर मैं बाद में वो क्लियर आउट कर लूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने मिस कर दिया, क्या बताना चाहिए था. ठीक है, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा सारी चीज़ें ऐसे वीडियो बनाते बनाते तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते. अच्छा, सो दिस इज द पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डेटा. द फर्स्ट वी हैव नाउ personal data and demographic data. What you ask about is the name. Okay, we take out the name, their address, their phone number, right? So that name, address and phone number, this is important for the patient identification and the follow up, so that we can get the
द इंफॉर्मेशन दैट वट एवर दे हैव सी। अगर पेशेंट को कुछ कंप्लेन लेके आए, कुछ दिक्कत लेके आया है आँख में, तुमने ट्रीट कर दिया, तुमने बोला कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आने के लिए, पेशेंट ने नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन वो सीवियर केस था, तुमको 1 हफ्ते बाद देखना ही था कि कुछ और सीवियर इफेक्ट हुआ कि नहीं और ठीक हुआ कि नहीं, है ना, तो पेशेंट नहीं आया, सो दैट यू विल हैव दैट फ़ोन नंबर, है ना, और दैट एड्रेस, सो दैट यू कैन कॉल देम, राइट। तुम कॉल करके बोल सकते हो कि आपको आना चाहिए था, है ना, आप आ जाइए, या फिर क्या कंडीशन है अभी, ठीक है। दैट इज फॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट नेम, एज एंड जेंडर, राइट। ओ सॉरी, फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे नेम, फर्स्ट जो होगा वो नेम, उसका एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द एज एंड जेंडर, एज एंड जेंडर, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा है, हाँ, एज एंड जेंडर। अब एज एंड जेंडर में क्या करना है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सी age is very much important and gender also very much important, because if there is any age related issue, वो जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ना किसी भी बॉडी का, वो ऑकुलर छोड़ दो, तुम किसी भी बॉडी पार्ट का, लाइक इट्स अ ह्यूमन बॉडी, है ना, विच इज मेड अप ऑफ दोज सेल्स, टिश्यूज, राइट, blood vessels, right, so there's all the scenarios are there na, they are the particles that गिव अप, आप डिपेंड्स ऑन द एज, ओके। वो जितना टाइम जाता है उतना वो बुढ़ा हो जाता है या बुढ़ापे में आ जाता है, ठीक है। वो भी उसका रीजनरेशन प्रोसेस उतना पहले जैसा हेल्दी नहीं रहता, पहले जैसा रिकवरी कर भी नहीं पाता, राइट। तो दैट इज़ वाई दैट एज इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ भी एसोसिएटेड एज फैक्टर्स हो सकता है, डिजीज हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, तो वो हम डील कर पाएंगे, ठीक है, एक हुआ। दूसरा है जेंडर, तो फिर जेंडर रिलेटेड जो बायसनेस है ना, देखो कि फीमेल में जो चीज़, जो हार्मोनल चेंजेस के वजह से जो ऑकुलर इफेक्ट हो सकता है, मेल में वो नहीं हो सकते, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेल या फीमेल वो जानना, फिर ट्रांसजेंडर फॉर दैट ऑल्सो, ओके। नाउ दिस इज डन। Now that language, occupations, these are the optional thing that we can take out, so that occupation will give you that hint कि पेशेंट का क्या कौन से प्रोफेशन में है, क्या काम करता है। जैसे कि IT प्रोफेशनल बोलो उसका काम अलग है ना, कोई फार्मर बोलो उसका काम अलग है, कोई ऑथर या राइटर बोलो उसका काम अलग है ना, उसका एक्टिविटी, ऑकुलर एक्टिविटी, है ना, वो अलग अलग होता है सबका। तो फिर उस हिसाब से हम मैनेजमेंट या जो भी प्लान करेंगे वो प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया डेमोग्राफिक एंड पर्सनल डिटेल्स। नाउ आई होप तुम लोगों को समझ में आया, तो अगर नहीं आया तो बता देना, तो फिर हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अभी होगा चीफ ऑब्जेक्शन, ओके, विच इज वी राइट इट डाउन लाइक C/O, विच इज अ चीफ ऑब्जेक्शन, CHIEF, चीफ ऑब्जेक्शन, ओके। अच्छा, अब चीफ ऑब्जेक्शन का क्या है, चीफ ऑब्जेक्शन क्या है, द पेशेंट इज कमिंग टू यू, है ना, पेशेंट तुम्हारे पास आया पहले दिन, फर्स्ट टाइम, या फिर फर्स्ट बार आया, पहले बार आया तुम्हारे पास। अब पेशेंट जो जो कंप्लेन बोलेंगे, अब तुम ऐसा बोल सकते हो सर, पेशेंट थोड़ी ना आके एक कंप्लेन बोलता है, पेशेंट तो बोलता है कि सर दर्द कर रहा है, आँख दर्द कर रहा है, आँख से पानी आ रहा है, इतना कुछ बोलता है ना। तो व्हाट यू विल राइट डाउन इन दिस चीफ ऑब्जेक्शन, इतने सारे पॉइंट से तुम वही लिखोगे जिसका प्रॉब्लम पेशेंट को सबसे ज़्यादा हो रहा है, राइट। आस्क द पेशेंट के विच कंडीशन इज बॉदरिंग देम मोर, राइट। इफ पेशेंट इज सेइंग के उसको उनको आँख से पानी ज़्यादा आ रहा है ना, जलन फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है लेकिन पानी ज़्यादा आता है, या फिर अगर उल्टा कि हर वक्त आँख जलता है और कभी कभी आँख से पानी आता है, राइट। सो दैट आँख जो हर वक्त जलता है, that burning sensation that we say, that will be the chief objection. So patient जिस चीज़ का प्रॉब्लम पेशेंट को सबसे ज़्यादा हो रहा है, that will be the chief objection. So that will be the like burning sensation. Okay, that is important. So clear. Now whenever, another one thing is whenever जब भी हम ऐसे लिखेंगे ना chief objection, so there are 2-3 things that we have to remember. What are the things? The conditions they are having. Okay, this is a burning sensation. Now, and the duration of the condition, कितने दिन से हो रहा है, since,
since how many days, if they are say since 1 week, if it could be 1 month, कितने समय से उनको ये तकलीफ हो रहा है. Second one, right, that duration. And is it a constant condition or the intermittent one, मतलब ये जलन हर वक्त होता है या कभी कभी होता है. इफ इट इज कांस्टेंट, सो दैट विल बी कांस्टेंट वन. वो बोलेंगे कि हर वक्त होता है, राइट. एंड नेक्स्ट इज कि व्हेन इट कम्स, दैट बर्निंग सेंसेशन कब होता है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है और इट ट्रिगर इन ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर प्रोसेस टाइमिंग. लाइक जब पेशेंट बोल रहा है कि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर हम मोबाइल देखते हैं ज़्यादा या फिर हम लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, तभी जाके ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है. तो राइट इट डाउन. व्हाट विल राइट डाउन? दैट बर्निंग सेंसेशन, ओके, ड्यूरिंग द स्क्रीन वर्क, ओके, since 1 week or 1 month, okay, and ask that in which eye it is having more. If they say in both eye, so it will be a both eye. If they say in one eye or that any particular eye, so that will be could be right eye or left eye. समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? होगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है. अच्छा, this is what the chief objection is. The second option that we have, that we write down, which is a secondary chief objection, that we write down is a S/C/O, secondary chief objection. Now what is this secondary chief objection? Secondary chief objection is the secondary options what they are telling you, but that is not that much of problem they're creating, right. Like उन्होंने बोला कि burning sensation होता है, जलता है आँख और कभी कभी पानी आता है. हमेशा जलता है आँख और कभी कभी पानी आता है. दैट कभी कभी पानी आता है, दैट वन विल बी द सेकेंडरी चीफ ऑब्जेक्शन, ओके, विच इज नॉट द फर्स्ट वन बट द सेकेंड वन, ओके. सो दैट वाटरिंग, ओके, वाटरिंग इन बोथ आई, है ना, सिंस द डेज, ओके, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट. सो द पॉइंट विल बी सेम. ड्यूरेशन क्या है उस कंडीशन का, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के इन्वायरमेंट पे होता है. इज इट अ कांस्टेंट और द इंटरमीडिएट वन, ओके, एंड इन बोथ आई, दोनों आंख में होता है कि एक आंख में होता है, ठीक है, वो मेंशन करना है. सो दिस इज व्हाट वी आर डन विद द चीफ ऑब्जेक्शन एंड सेकेंडरी चीफ ऑब्जेक्शन. नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट ऑफ व्हाट ऑक्यूलर हिस्ट्री, दैट वी राइट डाउन एज अ O/H, और वी कैन राइट डाउन ऑक्यूलर हिस्ट्री, ओके. So what is this ocular history is, okay, so this ocular history मतलब आँख का पुराना जितना भी इतिहास है वो सब आपको लिखना पड़ेगा. समझे? इतिहास समझते हैं ना? हाँ, तो वही इतिहास, वो बाबर आजम वाला इतिहास, ठीक है, वो मुगल का जो इतिहास है वो इतिहास नहीं लिखना है. इतिहास वही है लेकिन ये आँख का इतिहास लिखना है, ठीक है. अब क्या लिखना है तुमको? पेशेंट को पहले आँख में कुछ भी दिक्कत हुआ हो, वो पेशेंट ने चश्मा पहना हो, वो पेशेंट ने कॉन्टैक्ट लेंस पहना हो, पेशेंट का कुछ आँख में सर्जरी हुआ हो, पेशेंट के आँख में कुछ ट्रॉमा हुआ था पहले, है ना, पेशेंट के आँख में कुछ पहले डायग्नोज हुआ था, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया गया था, कुछ भी आँख में डाला गया हो या फिर सर्जरी किया गया हो, वो आएगा ऑक्यूलर हिस्ट्री के अंदर, ठीक है. सेम चीज़ होगा. अगर कुछ सर्जरी हुआ है तो फिर लिखना है ना, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है पेशेंट का, ठीक है, तो फिर लिखना है कि कैटरेक्ट सर्जरी हैज बीन डन हाउ मेनी ईयर्स बिफोर, कितना साल पहले, कितना बोला था ना मैं, ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है हर टाइम पे, ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट. तो बिफोर 5 years, है ना, तो ये लिखना है, ठीक है. और अगर चश्मा यूज़ किया हो तो वो भी लिखना है वैसा, दैट यूजिंग स्पेक्टिकल्स सिंस this 10 years, 5 years और 5 months, okay, same way using contact lens also, सब आएगा ऑक्यूलर हिस्ट्री के अंदर में. समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आता है तो बोलना, वरना डस्टर से मारेंगे. अच्छा, ये हो गया ऑक्यूलर हिस्ट्री, ठीक है. अब हम कैसे आएंगे? अब हम आएंगे सिस्टमिक इलनेस, ठीक है. और जो सिस्टमिक हिस्ट्री है, सिस्टमिक जो हम SI लिखते हैं, विच इज सिस्टेमिक इलनेस, ठीक है. अब सिस्टमिक इलनेस मतलब पेशेंट को जो भी सिस्टमिक डिजीजेस है,
पेशेंट को अगर कुछ भी सिस्टमिक कंडीशन है, ओके, लाइक व्हाट आर द सिस्टमिक कंडीशंस, क्वेश्चन है ना कि सर कौन सा सिस्टमिक इलनेस होगा, तो हम लिखेंगे, है ना। पेशेंट को अगर थायराइड है, पेशेंट को अगर शुगर है, पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है, पेशेंट को अगर आर्थराइटिस है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को पूछना है। पेशेंट को नहीं पूछना है कि आपको सिस्टमिक कंडीशन कुछ है आपका। पेशेंट कैसे बता पाएगा आपको कौन सा सिस्टमिक कंडीशन है? पेशेंट को क्लियर कट पूछना है कि आपका शुगर है, आपका प्रेशर है, आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें लिखना है। क्योंकि ये जो 3-4-5 चीज़ें हैं विच इज़ मोस्ट वर्स्ट थिंग दैट वी हैव इन आवर बॉडी। यार सच कह रहे हैं, तुम ये थायराइड वगैरह हो जाए ना तो सब एकदम एक्स्ट्राकुलर जो हम लोग का आई मसल्स है, आईलिड मसल्स है ना, जो एलपीएस मसल है, वो सारे थक जाते हैं, फिर वो झुक जाते हैं, ऐसे टोसिस कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस सिस्टमिक डिजीज की वजह से कितने सारे होता है, डायबिटीज रेटिनोपैथी हो जाएगा, है ना, सिस्टमिक प्रेशर की वजह से कितना चेंजेस हो जाएगा, है ना, ऑकुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी सेम है, कंडीशन कितने साल से है ना, और अभी कंट्रोल में है ही नहीं, है या नहीं, वो लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर पेशेंट को शुगर है, ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग ना डायबिटीज मिलिटस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ से होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ उतना अब तो नहीं मिलता, अगर मिलता भी पूछ लेना, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, बट पूछ लेना पेशेंट को। तो हम क्या लिखेंगे, डीएम विच इज़ अ डायबिटीज मेलाइटस, ओके, डीएम ऑन आरएक्स, आरएक्स मतलब भी कंट्रोल में है, और मतलब मेडिकेशन चल रहा है उनका, ठीक है, मेडिकेशन चल रहा है, सिंस कितने दिन से है, सिंस 10 ईयर्स और 5 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ये बात। अब आते हैं सिस्टमिक इलनेस के बाद हम क्या आएंगे, पेशेंट का कुछ एलर्जिक हिस्ट्री है कि नहीं, ठीक है, एलर्जिक हिस्ट्री विच इज A/H, विच इज एलर्जिक हिस्ट्री, ठीक है। अब इस एलर्जिक हिस्ट्री में डालना है क्या है, अब आपको किसी मछली से एलर्जी है, सी फूड से एलर्जी है, हाँ वो पूछना तो है ही, साथ में ये भी पूछना है किसी ड्रग से एलर्जी है कि नहीं, किसी एंटीबायोटिक ड्रग से एलर्जी है कि नहीं। फिर वो एंटीबायोटिक ड्रग लेते लेते आपका कुछ ऑकुलर इफेक्ट तो नहीं होता, आपको कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफारोकंजंक्टिवाइटिस तो नहीं हो रहा है उस ऑकुलर ड्रग की वजह से, ठीक है। तो वो अगर पेशेंट को मालूम है तो लिखना, अगर पेशेंट को नहीं मालूम होता है ना, अच्छा ये बात दूसरा पॉइंट निकला कि पेशेंट को जैसे कि शुगर प्रेशर पेशेंट का भी चेक नहीं कराए, ठीक है, तो पेशेंट को मालूम नहीं है क्या 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 है कि नहीं, तो फिर तुम क्या लिखोगे, पेशेंट को अगर नहीं मालूम है, ठीक है, पेशेंट ने चेक नहीं करवाया, पेशेंट बोल दिया कि हमको कभी फील नहीं हुआ, है ना, तो फिर तुम तो वो तो ऐसे वो भगवान तो है नहीं, उनको फील नहीं हुआ तो उनको नहीं रहेगा ऐसा तो है नहीं ना, तुम तो मेडिकल एक्सपर्ट हो, तो फिर तुमको अननोन लिखना है। अगर शुगर प्रेशर थायराइड आर्थराइटिस पेशेंट बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, तो फिर तुमको लिखना है अननोन, नहीं पता तुमको, पेशेंट को नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर नील लिख देना, ठीक है, पेशेंट को अगर नहीं एलर्जिक हिस्ट्री है तो फिर नील लिख दो, ठीक है, कोई एलर्जिक हिस्ट्री नहीं है पेशेंट को, हो गया। अब पेशेंट का और लास्ट में क्या है, ड्रग हिस्ट्री जानना है पेशेंट का, पेशेंट का ड्रग हिस्ट्री मतलब ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट अभी कोई ड्रग कोई मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, ड्रग मतलब सूंघने वाला ड्रग नहीं जो मूवी में दिखाता है, ड्रग्स जो मेडिसिन बनाता है, ठीक है, तो वो ऐसा कोई ड्रग्स लेता है कि नहीं, वो किसी भी एसिडिटी का हो या वोमिटिंग का हो जो कंटिन्यू लेते हैं, या फिर कोई गैस का एंटासिड लेते हो कंस्टेंट, शुगर का हो, प्रेशर का हो, कोई मेडिसिन कोई ड्रग्स चल रहा है कि नहीं, वो लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया ख़त्म पेशेंट का जितना हिस्ट्री लेना था। अब लेना है किसका हिस्ट्री, पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट के फैमिली में किसी को कोई ऑकुलर कंडीशन है कि नहीं, फैमिली ऑकुलर हिस्ट्री, ठीक है, फैमिली का ऑकुलर हिस्ट्री जानना है, फैमिली में किसी को क्या दिक्कत है पेशेंट को ऑकुलर, जैसे पेशेंट के पापा या मम्मी किसी को कोई चश्मा पहनता है, ठीक है, वो लिखना है, ठीक, वो इम्पोर्टेंट है। पेशेंट के दादा या दादी किसी को ग्लॉकोमा डायग्नोज हुआ है ना, तो फिर वो भी लिखना है। लिखना है मतलब इसलिए नहीं कि तुमको क्या करना है, जब तुम पूछ सकते हो सर इतना लिख के क्या करेंगे, इतना कहाँ टाइम मिलता है, सच कह रहे हैं नहीं टाइम मिलता है, लेकिन अगर तुम पूछने के बाद अगर तुम्हारे पास वो लिखा हुआ रहेगा ना तुम्हारे प्रेस्क्रिप्शन में,
तो तुमको नेक्स्ट टाइम या तो फिर तुम जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे, कुछ अगर इधर उधर देखोगे ना पैरामीटर चेंजेस है, तब तुमको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा उसके फैमिली में हिस्ट्री है ऐसा होने का, तो चांसेस है कि इसको भी एज रिलेटेड कंडीशन है भी नहीं, कोई थर्ड पार्टी कंडीशन है भी नहीं, फिर भी ये कंडीशन आ रहा है, तो फिर तुमको वो कंडीशन आएगा कि हाँ फैमिली की वजह से आ सकता है, यू विल सस्पेक्ट दैट। ओके, तो उतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा तुमको। तो फैमिली ऑकुलर हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, वो भी लिखना है, ठीक है, अगर मालूम है तो, अगर नहीं मालूम है तो अननोन लिख दो, ठीक है। ये हो गया यहाँ का। और लास्ट में क्या लिखना है तुमको लास्ट में लिखना है सोशल हिस्ट्री, विच इज अ सोशल हिस्ट्री, ठीक है। अब सोशल हिस्ट्री में क्या जानना है पेशेंट का, सोशल हिस्ट्री में जानना है पेशेंट स्मोकिंग करता है कि नहीं, स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करता है कि नहीं, ठीक है। अब ये दो कंडीशन पेशेंट का पूछ लेना है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो फिर रेगुलर करते हैं कि कभी कभी करते हैं, ओकेशनली, टू थिंग, ठीक है। अल्कोहल भी अगर कंज्यूम करते हैं ना, वो भी पूछ लेना है कि आप रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि कभी कभी, क्योंकि ये जो टॉक्सिक चीज़ें है ना, ये टॉक्सिक ऑकुलर इफेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं इस टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। बिकॉज दे आर नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो इफ़ यू आर डूइंग, बच्चों तो छोड़ दो, ट्राई करो, हो जाता है, ठीक है, छोड़ना। तो दिस इज व्हाट द सोशल हिस्ट्री इज। सो वी हैव डन most of our history that we take in optometry, that importance of our history taking, so that if the question comes in your exam, that importance of history taking, तो तुम ये सारे पॉइंट लिखो, और मैंने जो पॉइंट बोला हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन वो लिख लेना, तो फिर याद रह जाएगा, है ना। और समझ लेना, एक बार एक चीज़ हर वक्त मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ ना कि एक चीज़ों को दिमाग में ना समझ के रखो, अगर एक बार समझ लिए ना तो फिर तुम उसको खुद के वर्ड में लिख पाओगे। हाँ, थोड़ा सेंटेंस गलत हो जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते सेंटेंस भी सही हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग वो लिखना प्रैक्टिस करना चालू करो, कंसेप्ट हर टाइम सोचना, कंसेप्ट जो है ना उसको एब्जॉर्व करो, अगर कंसेप्ट एब्जॉर्व हो गया ना तो तुम उसको आराम से लिख पाओगे और कभी भूलोगे नहीं, सच कह रहा है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा हिस्ट्री टेकिंग का जो सारे पॉइंट हमने बोला है, ठीक है। तो ये गो थ्रू कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना मुझसे कमेंट में। एंड या सो वी कैन कंक्लूड आवर क्लास। तो हम आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल रिफ्रैक्शन का ही। और तुम लोग और मुझे एक बार बता देना कि तुम लोग का एग्ज़ाम कब है, फाइनल एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन और उसका डाउट क्लियर कर लेंगे, उसका आंसर भी क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये सारे चीज़ें भूल जाओगे और कोई हमेशा नहीं बता पाएगा ऐसे वीडियो में, है ना। तो फिर तुम क्लास वाला चीज़ भूल सकते हो, लेकिन ये जब भी डाउट होगा तुम ये वीडियो देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो।